اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد۔ آج میں جو علم تعلیم آپ لوگوں کے بیچ پیش کرنے جا رہا ہوں، سرکار گوھر شاہی میرے پیر مرشد کے کرم سے، وہ یہ کہ نماز کے حوالے سے چند جانکاری، چند تعلیم آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا۔ جو مسلمان بھائی بہنیں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حقیقت سے انجان ہیں، ان کے لیے یہ تعلیم بے حد مفید ثابت ہوگی۔ اور سرکار کے کرم سے، میرے پیر مرشد سرکار گوھر شاہی کے کرم سے میری یہ تعلیم سننے کے بعد، یہ علم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ نماز ادا کریں گے تو ان کے لیے وہ نمازیں باعث برکت اور قبولیت کے درجے پہ ہوگی۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ جن بھائی بہنوں نے قرآن مجید پڑھی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی یہ تعلیم کی باتیں، ان کے لیے بھی میری یہ میسج ہے۔ اور جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم نہیں لی ہے، قرآن مجید نہیں پڑھا ہے، ان کے لیے بھی میری یہ میسج، میری یہ تعلیم کام آنے والی ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان سبھی لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جنہوں نے درس قرآن حاصل کی ہے، جنہوں نے قرآن مجید اور حدیثوں کی گیان تعلیم حاصل کی ہے، ان سے میں جاننا چاہوں گا، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، یہ آپ مجھے بتا دیں، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اور دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورے قرآن مجید میں کیا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نماز میں نے مسلمانوں کے اوپر فرض کی؟ نہیں نا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نماز مومنوں کے اوپر فرض کی۔ لیکن بے حد افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور بے حد افسوس کی بات ہے، بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان، داڑھی رکھے ہوئے شریعت پہ چلنے والے مسلمان، نماز قائم کرو اللہ نے فرمایا، اور اتنے بڑے بڑے گیانی جو پوری عمر نماز میں بتا دیے اور نماز ادا کرتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ نماز قائم کرو اللہ نے فرمایا، اور یہ نماز قائم کی کیسے جاتی ہے یہ انہیں پتہ ہی نہیں۔ بے حد افسوس کی بات ہے کہ نماز قائم کی کیسے جاتی ہے، نماز کا قائم کرنا کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نماز مومنوں کے اوپر فرض کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نماز مومنوں کے اوپر فرض کیا، لیکن بے حد افسوس کی بات ہے کہ بندہ اس بات پہ بھی غور و فکر نہیں کرتا ہے اور نماز میں لگا ہوا ہے۔ کس بات کی غور و فکر نہیں کرتا ہے؟ اس بات کی غور و فکر نہیں کرتا کہ وہ مومن ہے یا مسلمان ہے، کیا ہے وہ؟ ارے بھائی، نماز تو اللہ نے مومنوں کے اوپر فرض کی ہے، لیکن کیا تو مومن ہے یا مسلمان ہے؟ کیا ہے تو؟ اس بات پہ بھی غور و فکر نہیں کرتا اور نماز پڑھے جا رہا ہے۔ سب جان کر بھی انجان بنے بیٹھے ہیں اور فرض نمازیں، نفلیں، سنتیں ادا کیے جا رہے ہیں، اور بولتے ہیں کہ قبولیت کا دار و مدار اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے چاہا تو قبول کرے گا، اللہ نے چاہا تو نہ قبول کرے گا، مجھے تو بس اس کا حکم ماننا ہے۔ ارے بھائی، اللہ نے تو تم لوگوں کو آشوست کیا، کھل کر ضمانت دی ہے، کس کی نماز قبولیت کے درجے پہ ہے، کس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کا پہچان بتایا ہے۔ کیا تم نے اس پہ غور نہیں کیا؟ اور پھر بھی بے وقوفی والی باتیں کرتے ہو، پڑھے لکھے ہونے کے بعد،
मदरसों की तालीम लेने के बावजूद, कुरान मजीद की तालीम हासिल करने के बावजूद, शरीयत के अमल करने के बावजूद, फिर भी तुम बेवकूफ़ी जैसी बातें करते हो कि कबूल अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने चाहा तो किया, नहीं चाहा तो नहीं किया। इस तरह बेवकूफ़ी जैसी बातें करते हो, जबकि अल्लाह तो जमानत दे रहा है, पहचान बता रहा है नमाज की कबूलियत और ना कबूल होने का, फिर भी तुम इस तरह की बातें करते हो। बेहद अफसोस की बात है। क्या अल्लाह जमानत नहीं दे रहा, पहचान नहीं दे रहा? तुम्हारे नमाज के कबूल होने का पहचान नहीं बता रहा है कि तुम्हारा नमाज कबूलियत के दर्जे पे है? नहीं बता रहा? क्या तुमने कुरान पर अमल नहीं किया? क्या तुमने ये कुरान की आयत नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। क्या ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे नमाज की जमानत नहीं है, कबूलियत का पहचान नहीं है कि बेशक नमाज तुम्हारे अंदर की बेहयाई और बुराई के कामों को दूर कर देगी? ये पहचान नहीं है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने इस कलाम पे गौर किया कि ये नमाज के कबूल होने की पहचान है। अगर जिसकी नमाज कबूल अल्लाह कर रहा है, कबूलियत के दर्जे पे पहुंच रही है, तो उस नमाज से उस बंदे के अंदर से बेहयाई के काम दूर हो जानी है, ये पहचान है। लेकिन तुम तो नमाज भी पढ़ रहे हो, रोजे भी रख रहे हो, नफिले भी पढ़ रहे हो, सुन्नतें भी अदा कर रहे हो, उसके बावजूद जरा गौर करो, अपने अंदर झांको और फिर देखो कि क्या तुम्हारे अंदर से वो बेहयाई के काम दूर हुए? क्या तुम्हारे अंदर से वो हंसी मजाके, ठहाके बाजी, चुगली, गीबत, एक दूसरे के प्रति बुग़्ज़, कीना, नफरत, ये सारे बेहयाई वाले हरकतें जो तुम्हारे अंदर बाकी है या तुम्हारे अंदर से दूर हो गई है, इस पे गौर करो, अपने अंदर झांको। कैसे दूर होगी? मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं कि तुम नमाजी भी हो, हाजी भी हो, सुन्नतें नफिले अदा भी करते हो, लेकिन फिर ये बेहयाई वाली बातें, बेहयाई वाली हरकतें तुम्हारे अंदर से नहीं निकली है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। और इन सब बातें तुम्हारे अंदर से नहीं निकली तो इसका पहचान है कि तुम्हारा नमाज कबूल रब ताला के बरगाह में नहीं हो रहा। और कुछ हमारे मुसलमान, हमारे माशरे के ऐसे हैं जो स्वार्थी हैं, जो नमाज भी अगर शुरू करते हैं, पढ़ते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए पढ़ते हैं। नफिले अदा करते हैं, सुन्नतें अदा करते हैं, तहज्जुद अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, सदके देते हैं, तो उसके पीछे भी उनका मनसा छिपी हुई रहती है, उनकी स्वार्थ छिपी रहती है। उसके पीछे भी उनकी मनसा छिपी रहती है, उनकी स्वार्थ छिपी रहती है। बस इसी वजह से वो अदा करते हैं। अब कहोगे कि स्वार्थ, कैसा स्वार्थ? ये मन में विचार, ये सवाल आपके आ रही होगी। अरे भाई, ये स्वार्थ नहीं तो और क्या है? ये जाहिल गुमराह लोगों का ये दिल में ख्वाहिश, ये तमन्ना होती है कि नमाज पढ़ो तो हमारे कारोबार अच्छे चलने लगेंगे, बरकत होने लगेगी। ये तुम्हारी जाहिरी स्वार्थ नहीं तो और क्या है? नमाज पढ़ो, दाढ़ी रखो, लोगों में इज्जत मिलेगा, लोग सलाम करेंगे, ये तुम्हारा स्वार्थ नहीं तो क्या है? तो तुम्हारा स्वार्थ तो पूरा हो जाता है, लोगों में तुम्हें इज्जत भी मिलने लगती है, लोग तुम्हें सलाम भी ठोकने लगते हैं, तुम्हारा सीना और चौड़ा हो जाता है, तुम तकब्बुर तुम्हारे अंदर और आ जाती है। इतना तकब्बुर भर जाता है तुम्हारे अंदर कि किसी बेनमाजी को तुम हिकारत की नज़र से देखने लगते हो, किसी बेदाढ़ी वाले को हिकारत की नज़र से देखने लगते हो। जबकि नमाज किसी के स्वार्थ के लिए नहीं है, तुम्हारे स्वार्थ के लिए नहीं है। नमाज केवल और केवल सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह को पाने के लिए है, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए है। उसमें किसी भी तरह का दुनियावी स्वार्थ नहीं होनी चाहिए। अगर दुनियावी स्वार्थ हो जाती है नाम कमाने का, कि लोग सलाम करें, इज्जत करें, तो ये तुम्हारे नमाज रियाकारी में चले जाएंगे, दिखावे में चले जाएंगे। इस नमाज के तुम्हें कोई फायदे नहीं हासिल होने वाले। अगर तुम्हारा स्वार्थ है रोजी रोजगार में बरकत, घर में शांति, बीमारी दुखी
दूर हो, इसी नियत से तुम पढ़ रहे हो, तो फिर तुम्हारी नमाज रियाकारी में, दिखावे में चली जाएगी और इस नमाज की तुम्हारी ऊपर कोई फायदे नहीं होंगे। क्या तुमने इब्लीस का हाल नहीं सुना कि इब्लीस शैतान के साथ क्या मामलात पेश आए? क्या तुमने नहीं पढ़ा? वो तो कम से कम तुमसे बेहतर था। वो तो इतना बड़ा आबिद, परहेजगार, इतने इबादत किए, उसकी इबादतें, परहेजगारी के पीछे कोई स्वार्थ नहीं थी। उसने जो भी किया, जितने भी सजदे किए, वो खुलूस दिल से रब के बारगाह में किया उसने। तुमसे तो बेहतर था, बस एक गलती उसने कर दी। वो क्या? तकब्बुर। मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, मैं इसके आगे सजदे नहीं करूंगा। बस इस बात की तकब्बुर। ये एक तकब्बुर की वजह से वो रांधे दरगाह हुआ। उसकी नमाजें, उसके सजदे अल्लाह ने दे मारे उसके मुंह पर। जरा सोचो, तुम्हारे अंदर तो उससे बढ़कर है वो हरकतें। तुम तो 2 कदम उससे आगे हो। अब सोचोगे कि 2 कदम आगे कैसे हूं? तो सुनो, तुम्हारे अंदर तकब्बुर भी है। जो इबादत तुम करते हो, उस इबादत में स्वार्थ भी है, दुनिया के स्वार्थ भरे हुए हैं। खुलूस दिल से वो इबादत तुम नहीं कर रहे हो। दूसरी ये कि तकब्बुर से भरे हुए हो, तकब्बुर भी है तुम्हारे अंदर। बुग़्ज़ है, कीना है, जलन है, हसद है, क्या क्या ना है तुम्हारे अंदर। और इब्लीस, शैतान के अंदर सिर्फ एक चीज थी, वो थी तकब्बुर। मैं आग से बना हूं और आदम खनखनाती मिट्टी से बने हैं, मैं इनके आगे सजदे नहीं करूंगा। ये तकब्बुर की वजह से वो गया। और तुम्हारे अंदर सोचो क्या क्या ना भरे पड़े हैं, तो तुम्हारा क्या होगा? तो मेरे भाई, मैंने पढ़े लिखे जो दरसे निजामिया किए हुए और मदरसों का जो तालीम लिए, जो शरीयत पे अमल करते हैं, मैंने उनकी भी हालाते जिंदगी आपके सामने रख दी। और जो जाहिल गुमराह हमारे कौम के लोग हैं, उनकी भी हालाते जिंदगी आपके सामने रख दी। जो मदरसों की तालीम लिए हुए हैं, जो दर्स से निजामिया किए हुए हैं, जो शरीयत पे अमल करते हैं, वो भी नादान है, नादानों जैसी बातें करते हैं। कहते हैं कि कबूलियत का दारोमदार अल्लाह के हाथ में है, वो चाहे तो करे, वो चाहे तो ना करे। बस हम पर फर्ज किए गए, हमें बस पढ़े जाना है, पढ़े जाना है, पढ़ते जाओ। हकीकत चाहे ना जानो, बस पढ़ते जाओ। नमाज की हकीकत चाहे मत जानो, लेकिन पढ़ते जाओ। पर अल्लाह तो जमानत दे रहा है, ये आश्वासन आप लोगों को विश्वास दिला रहा है कि किसकी नमाज कबूल वो करता है, किसकी नहीं करता। ये दुनिया में रहते पहचान बता रहा है कि किसकी वो कबूल करता, किसकी नहीं करता है। और वो पहचान तो वो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, और भी ना जाने कई जगहों पे उसने पहचान बताई है। और सबसे मोटा मोटी पहचान तो वो मैंने आपको ये कलामे इलाही आपको सुना दी कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। तो जरा झांको कि तुम्हारे नमाजों से तुम्हारे अंदर की बेहयाई और बुराई की काम गए कि नहीं गए। क्या तुम्हारे अंदर से किसी के प्रति बुग़्ज़ चले गए? क्या तुम्हारे अंदर से किसी के प्रति कीना चले गए? क्या किसी को खाता कमाता देखकर तुम्हारे अंदर से जलन हसद चले गए? क्या तुम्हारे अंदर से वो गाली, वो गलौज, वो बेहयाई की ठहाकेबाजी, मस्ती चली गई? गौर करो तुम अपने अंदर, क्या तुम इंसान बन गए? गौर करो तुम इसे अपने ऊपर, अपने अंदर झांको, तब नमाज पढ़ना। और अगर ये बात सब तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है और फिर भी नमाज पढ़ रहे हो, तो बेहद शर्म की बात है। शर्म की बात है कि सब जानते हुए भी तुम वो काम कर रहे हो और उसे दुरुस्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसे दुरुस्त करने की कोशिश नहीं कर रहे। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया नमाज कायम करो। किसी भी जगह ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो। नमाज कायम की कैसे जाती है? अफसोस की बात है कि पढ़े लिखे शरीयत पे अमल करने वाले लोगों को भी नहीं मालूम, और नहीं मालूम है तो लोगों को भी नहीं बता पाते, नहीं समझा पाते। आज इस सरकार गौहरशाही के गुलाम के मुंह से सुनो कि नमाज कायम कैसे होती है। नमाज कायम करने का और नमाज कायम करना दरअसल ये है
کہ آپ नौकरी करते हैं, जिस तरह मैं मिसाल दे रहा हूं कि जैसे मान के चलिए कि आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और आपने 2 पैसे कमा कर लाए, उस मेहनत से नौकरी करके कमा के लाए और उस पैसे को आप डिपॉजिट कर दें, बैंक में जमा कर दें, यह है कायम करना। जमा कर देना मेहनत की कमाई को, यानी कि कायम करना। नमाज का भी हकीकत कायम करना ठीक वैसा ही है। नमाज क्या है? नमाज पढ़ने से, रोजे रखने से, नफिल अदा करने से, सुन्नतें पढ़ने से क्या है? इससे नूर बनती है और जो नूर बनती है उस नूर को अपने कल्ब में स्टोर कर लेना, आपके कल्ब में स्टोर हो जाना, जमा हो जाना वो नूर, ये है नमाज का कायम होना। और दूसरी बात कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो फरमाई है वो ये कि नमाज मोमिनों के ऊपर फर्ज किया। अपने अंदर चेक करो, देखो कि क्या तुम मोमिन हो या तुम मुसलमान हो। अगर तुम केवल मुसलमान हो, मोमिन नहीं हो और नमाज अदा कर रहे हो तो वैसे भी तुम्हारी नमाज जाया जा रही है, क्योंकि नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के ऊपर फर्ज किया। तो मेरे भाई सबसे पहले मोमिन बनो, फिर नमाज कायम करो। और हुजूर पाक ने भी फरमाई हदीस कि ला सलाता इल्ला बि हुजूरी कल्ब, बगैर हुजूरी कल्ब के तेरी नमाज हो ही नहीं सकती। अब ये हुजूरी कल्ब क्या है ये भी जान लो। ये हुजूरी कल्ब वही है, ये हुजूरी कल्ब दरअसल यही मोमिन की पहचान है। हुजूरी कल्ब हासिल नहीं हुई तो आप मोमिन नहीं है। और फिर आप नमाज पढ़ रहे हैं और हुजूरी कल्ब हासिल नहीं है तो आपका नमाज जाया जा रहा है। हुजूरी कल्ब हासिल कर लिया और फिर नमाज पढ़ा, तब जाकर आपकी नमाज होगी, रब के बरगाह में कबूलियत के दर्जे पे पहुंचेगी। आपने हुजूरी कल्ब हासिल नहीं की और नमाज पढ़ रहे हैं तो आप केवल मुसलमान हैं, आपकी नमाज हो ही नहीं सकती। हुजूर पाक ने फरमाया कि बगैर हुजूरी कल्ब के नमाज हो ही नहीं सकती। और हुजूरी कल्ब का हासिल करना यानी कि मोमिन बनना है। अब ये हुजूरी कल्ब है क्या, ये हासिल होती कैसे है? तो आज ये भी जान लो हुजूरी कल्ब की हकीकत, ये हासिल कैसे होती है ये भी सीख लो और मेहनत करो, कोशिश करो हासिल करने की हुजूरी कल्ब। ये हुजूरी कल्ब तुम खुद से चाहोगे तो हासिल नहीं हो सकती, कतई नहीं हासिल हो सकती। इसके लिए तुम्हें मर्द कलंदर मुर्शिद कामिल का हाथ थामना पड़ेगा। मुर्शिद सच्चा गुरु तुमको पकड़ना पड़ेगा, वो गुरु तुम्हें थामना पड़ेगा जिस मुर्शिद को रब ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया, जिसको अल्लाह ने दुनिया में भेजा उसके बंदों को गुमराही से निकालने के लिए, जिसको अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला, इज़्न मिला, हुजूर पाक की तरफ से इज़्न मिला, हुक्म मिला, ऐसा गुरु तुम्हें थामना पड़ेगा, ऐसा मुर्शिद तुम्हें थामना पड़ेगा। आजकल के तो हर गुरु वैसे मिलते नहीं, ज्यादातर तो आपको वही गुरु मुर्शिद मिलते हैं जो आपको गुमराहियत पे ही रखते हैं और जो आपको सिर्फ वक्त टालते रहते हैं और लगा करके इसी में रखते हैं, उलझा कर रखते हैं, दुनियावी वजीफे में, दुनियावी शरीयत में इसी में उलझा कर रखते हैं, लेकिन मोमिन बनने का राज नहीं देते हैं। क्योंकि वो खुद मोमिन होंगे तो ना आपको मोमिन बनने का राज बताएंगे, राज देंगे, हुजूरी कल्ब का राज देंगे। वो खुद नहीं है, उनको खुद नहीं पता है तो आपको क्या खाक देंगे। तो ऐसा सच्चा गुरु, सच्चा मुर्शिद जो रब की जानिब से भेजा गया, रब की तरफ से जिसे इज़्न मिला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से जिसे इजाजत मिली, वो ऐसा गुरु अगर कोई है तो हमारे सरकार, हमारे पीरो मुर्शिद सैयदना रियाज अहमद कहर शाही ही हैं इस वक्त, जो लोगों को हुजूरी कल्ब की दौलत से नवाज रहे हैं और उसे मोमिन बना रहे हैं लोगों को। और ये हुजूरी कल्ब क्या है? वो ये कि आप सोते रहे, आपकी दिल अल्लाह अल्लाह करती रहे, आप काम काज करते रहे, आपके दिल अल्लाह अल्लाह करती रहे, आप खरीद फरोख्त करते रहे, दुनिया के काम करते रहे, आपके दिल में, कल्ब में अल्लाह का जिक्र चलता रहे। यह है हुजूरी कल्ब। इसके लिए मुर्शिद का चयन करें, सरकार गौहर शाही से जुड़े और इजाजत तलब करें, आपको भी इजाजत मिल जाएगी। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। खुलूस दिल से आप इस जिक्र कल्ब को अपनाएं और मोमिन बने, अल्लाह का राह चुने, अपने नमाज को कबूलियत के दर्जे पे पहुंचाएं।
اور اللہ والے بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔